Now, today we'll deal with section 34 of the IPC. It provides for constructive criminal liability and recognizes the principle of vicarious liability in criminal jurisprudence. It makes a person liable for an action of an offense not committed by him but committed by another person with whom he shared a common intention. Alright, it is a rule of evidence and does not create a substantive offense. You should be very clear in that. This section gives statutory recognition to the common sense principle that if two or more persons intentionally do a thing jointly, it is just the same as if each of them had done it individually. Common intention presupposes prior concert, which requires a pre-arranged plan of the accused participating in the offense. Such pre-concert or pre-planning may develop on the spot, which is in Latin called eo instanti. Then, during the course of commission of the offense also, common intention may develop. The crucial test to determine whether there was a pre-arranged plan or not is that pre-arranged plan must precede the act which constitutes an offense. Alright. So, either it has to be during the commission of offense or before commission of offense. But after commission of offense, you cannot have this pre-arranged plan as to make a person liable under section 34 common intention. Alright. So, I'll just read what the Bayer Act has to say first. Section 34 says, acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the acts in the same manner as if it were done by him alone. Now here the key word is furtherance of common intention of all. Now what does word furtherance signifies? Why did the legislature use the word furtherance? It means the common intention is on foot. It is still being prosecuted. Alright. So, anything which aids in prosecution of that common intention is for the purpose of section 34 relevant. That is why in judicial language we call it pre-arranged plan or something like that, where we find that the common intention should actually be towards the end goal which constitutes an offense. Only then it can be construed as common intention. Otherwise, it will not be called common intention. So here the key word is furtherance in common intention of all. That is the key word. Now you already know that common intention can be formed on the spot as well. The existence, always remember that the existence of common intention is always a question of fact in each case and will be proved in accordance with facts and circumstances of the case. So circumstantial evidence, direct evidence, conduct of the accused are all relevant to determine that whether a person or persons acted in furtherance of common intention or not. I am just giving a brief summary of section 34 before elaborating on each and every point. Alright, I am just giving you a hint of what is about to come. Furthermore, the dominant feature to attract section 34 of the IPC is the element of participation. See, without participation it cannot be said that the persons acted in common intention. Alright. So participation has to be there. That is the most dominant feature. And if participation is absent, then it cannot be said, it can never be said that the person acted in prosecution of common intention. The act referred to in the latter part of section 34, you see this word na, that each of such person is liable for that act. So that mark the word that act. Is act ka kya matlab hai? Why did the legislature use that particular word? The act referred in the latter part of section 34 means the ultimate criminal act with which the accused person is charged. जो अल्टीमेट क्रिमिनल एक्ट जिसके लिए एंड में उन अक्यूज्ड पर्सन का प्रोसिक्यूशन हो रहा है,
वो देखना होगा कि क्या वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में थी या नहीं. ऑलराइट, सो मैं थोड़े लीगल प्रिंसिपल्स बता दूं, देन आई विल क्लियर इट मोर एंड एलैबोरेट मोर विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस. So the section does not envisage that a separate act by all the accused persons for becoming responsible for the ultimate act. अगर सब लोग अलग अलग एक्ट कर रहे हैं तो they do not become liable for the act of every other person acting independently. वहाँ पे common intention नहीं है. But where all of them are acting in a tandem towards the prosecution of a common goal, there it can be said that there was common intention among them. Alright, see, common intention is different from similar intention. Common intention is a rule of evidence. Common intention requires participation. Common intentions require pre-arranged plan. It can be formed before the commission of a crime or during the commission of crime which is called at instant, eo instanti. Instant पे बन गया आपका pre-arranged plan. It is very necessary for that. But अगर इनमें से एक भी एलिमेंट गायब है कि प्री अरेंज प्लान ऑफेंस कमिट होने के बाद बना, ये जो वर्ड लेजिस्लेचर ने एक्ट लास्ट में लगाया ना लेटर पार्ट में, उस अल्टीमेट पेनल्टीमेट एक्ट के कमिट होने के बाद हुआ, देन इट कैन नॉट बी सेड दैट द पर्सन्स एक्टेड इन अ कॉमन इंटेंशन. ठीक है. सो पार्टिसिपेशन इन क्राइम इज द मोस्ट डोमिनेंट फीचर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड जो लेजिस्लेचर ने वर्ड एक्ट यूज़ किया है वो किस पर्पस के लिए किया है. तो इस पे 3 लीडिंग केस हैं. बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर. योर नेक्स्ट इन लाइन ऑफ लीडिंग केसेस इज योर महबूब शाह वर्सेस एम्परर. I think it was reported in 1945. It was, all of these are Privy Council judgments. And finally we have Pandurang versus State of Hyderabad, that was by Supreme Court. These are the locus classicus, the classic cases which you have to quote if you want to clear exams. ये आपको mention करने ही करने हैं. These are very essential. So first I'll be telling you about the case of Barendra Kumar Ghosh. Barendra Kumar Ghosh में क्या हुआ था? There were some persons involved which were 5 or less. तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस को लूट लेते हैं. We have a plan to rob post office. तो पोस्ट मास्टर ऑफिस में ही था. बरेंद्र कुमार घोष वॉज वेटिंग आउटसाइड द डोर. ठीक है. बरेंद्र कुमार घोष वॉज वेटिंग आउटसाइड द डोर. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस is that the main accused actually shot the postmaster and the postmaster died. And later all of them were prosecuted. Now Barendra Kumar Ghosh took a defense that he never did anything. He was just standing at the gate guarding it. And in the facts and circumstances it was proven that Barendra Kumar Ghosh's duty was only to alert the other offenders that is the police there or some eyewitness is there or somebody is there who might see them. So his duty was only to alert them. But the court said that all of you have acted in furtherance of common intention. So hence Mr. Barendra Kumar Ghosh, even though you guarded the gates, you are still liable for the murder of the postmaster in the same way as if you had committed the murder itself by your own hands. Justice Samna actually quoted John Milton and said, those also serve who stand and wait. तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है वो बरेंद्र कुमार घोष के ऊपर रख दी गई थी, नॉट विद स्टैंडिंग हिज डिफेंस कि उसने कोई एक्ट नहीं की. तो यही कॉमन इंटेंशन का प्राइमरी एसेंस है. ये कंस्ट्रक्टिवली लायबल कर देता है उन लोगों को ऐसी एक्ट्स के लिए जो हालांकि उन्होंने ना कमिट की हो, लेकिन अगर ये पा लिया गया
कि वो एक्ट जो पेनल्टीमेट एक्ट थी, जैसा कि सेक्शन 34 कहता है, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट। ये जो दैट एक्ट है ना, ये वो अल्टीमेट क्राइम है जिसके लिए प्रोसिक्यूशन हो रहा है। अगर ये पा लिया गया कि वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल था, उसमें फॉल कर गया, देन इन दोज सिचुएशन द पर्सन्स विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्राइम कमिटेड बाय वन ओनली। भले उन्होंने कोई और क्राइम नहीं किया हो, उन्होंने ना किया हो, उन्होंने सिर्फ गेट गार्ड किया हो, या फिर ऊपर से सिर्फ अलर्ट करने की जिम्मेदारी हो, या उन्होंने सिर्फ गेट ही तोड़ा हो। अगर ये पाया गया कि उन सब का यही कॉमन इंटेंशन था कि लेट अस रॉब द पोस्ट ऑफिस, तो दे विल बी लाइबल। तो एक इलस्ट्रेशन है। अब कॉमन इंटेंशन बनता कैसे? देखिए, कॉमन इंटेंशन टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 34 यू हैव टू बी लेस देन 5, 5 से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 या उससे ज़्यादा हो गया तो आप अनलॉफुल असेंबली और 149 में चले जाएंगे। उसके पैरामीटर्स अलग हैं। 34 के बाद आई डील विद 149 ओनली। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के दोनों इश्यूज है उसमें अराइज होते हैं, बट प्राइमरली आप सेक्शन 34 को पहले समझिए। इट इज़ मोस्टली अबाउट रूल ऑफ एविडेंस। कभी भी किसी आदमी का सेक्शन 34 में प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। दे आर ऑलवेज कन्विक्टेड थ्रू द एड ऑफ सेक्शन 34, जब आदमी 2 या 2 से ज़्यादा हो पर 5 से कम। तो आप अगर मान लीजिए सेक्शन 34 में कन्विक्शन देखेंगे तो यू विल सी दैट अ पर्सन इज बीइंग कन्विक्टेड बाय सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34। पर कभी भी सेक्शन 34 का ऑफेंस सिंप्लिसिटर नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 34 बाय इटसेल्फ नेवर पेनलाइजेज एनीथिंग। खुद से वो कभी पनिशमेंट नहीं देता, ये बस एक कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐड कर देता है। पर 149 ऑफ द सीआरपीसी क्या करता है? वो एक सब्सटैंशिव ऑफेंस भी है। ऑलराइट, वो तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐड करता ही करता है, बट इट ऑल्सो what it also does is that it also provides for constructive liability under section 149. But 34 is simple. It is only a rule of evidence. It doesn't envisage within its dominion any substantive offense by itself. तो कभी भी आप किसी का कभी भी सेक्शन 34 में प्रोसिक्यूशन नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि यू आर लाइबल फॉर सेक्शन 34। यू आर नॉट लाइबल फॉर सेक्शन 34। आप लाइबल किसी ऑफेंस के लिए होते हैं, जहाँ जो लेजिस्लेचर ने बताया है बाय द यूसेज ऑफ वर्ड दैट एक्ट इन द लेटर पार्ट। तो दैट एक्ट है तो कोई ऑफेंस होगा। अब ऑफेंस कुछ भी हो सकता है, मर्डर का मान लीजिए, तो दैट एक्ट को हमने मर्डर का अगर मान लिया तो दैट कम्स आउट टू बी अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। अब लोग हैं 2 से ज़्यादा या 2 ये और 5 से कम, अब इतने लोग हैं, तो आप इन लोगों को, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 3 या 4 लोग हैं, तो इन 4 लोगों को अगर आपने पाया एज अ जज कि that they have committed a particular crime and they have acted in furtherance of common intention of all, तो आप उनको सेंटेंस कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम, सबको एक साथ। इवन दो ये हो सकता है कि ओवर्ट एक्ट सिर्फ एक ने की हो और बाकी सब ने कोई भी एक्ट ना कमिट की हो, ये भी हो सकता है। अब मैं आपको इस पर कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ। अब एक मान लीजिए ABCD जी को मर्डर करने जाते हैं और वो सोच लेते हैं कि उन्हें जी को मारना है आज ही रात को। तो ABCD, उसमें C और D का काम होता है गेट को गार्ड करना, और अगर कोई आ रहा हो तो अलर्ट कर दे। मान लो पुलिस आ रही हो तो अलर्ट कर दे उन लोगों को, ये इतना काम है। ABCD जाते हैं जी के घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उन्हें देख लेता है। A क्या करता है, उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और उसके बाद C और D लाश को ठिकाने लगा देते हैं। A है घर के अंदर घुसता है, B उसके पीछे जाता है, C और D गेट पे ही रहते हैं। A ऊपर जाके Z को मार देता है। B ऊपर से C और D को इन्फॉर्म करता है कि A ने जी को मार दिया और चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं। तो सब लोग भाग जाते हैं, एवरीबॉडी एब्सकॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 सवाल अराइज होते हैं।
क्या सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर कॉमन इंटेंशन में था? ये फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सी और डी, जिन्होंने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं की, उन्होंने तो किसी को नहीं मारा, सिक्योरिटी गार्ड को भी ए ने मारा और जी को भी ए ने मारा, तो क्या सी और डी और बी, क्या ये लोग लायबल हो सकते हैं and for murder by the aid of section 34 even though they have no overt act which can be accounted to them? The answer is yes, they would be liable for the murder of security guard as well and for the murder of Z as well. अब देखिए, जब A ने बताया BCD को कि we plan to murder Z, तो ऐसे केस में प्री अरेंज्ड प्लान इनका बना। अब वो जो प्री अरेंज्ड प्लान है, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन करिए। पॉइंट ए, मतलब आप एक गोल बनाइए, बिगिनिंग पॉइंट है एक और एक एंड पॉइंट है। अब उस बिगिनिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के जाने में जितने भी चीज़ें रास्ते में आती हैं और जितने भी बैरियर्स अगर रास्ते में आते हैं, तो अगर उनको हटाया गया, उनको मारा गया, उनको रिमूव किया गया, then it will be presumed that all of them were acting in furtherance of common intention. तो सिक्योरिटी गार्ड जब बीच में आया तो वो उनके एंड गोल जो जी को मारना था उसके लिए एक बैरियर था, तो ए ने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद वो ऊपर जाके जी को भी माराया। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने इन सब का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो ए तो आपको पता है इजीली कन्विक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं दे विल बी कन्विक्टेड बाय द एड ऑफ सेक्शन 34, क्योंकि उन्होंने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किए, उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन किस चीज़ के रेलेवेंस में है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्योंकि वो एक कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में उन्होंने एक एक्ट की जो क्राइम थी, तो ऑल ऑफ देम विल बी लाइबल एज इफ द पेनल्टीमेट एक्ट वर द एक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि बी सी डी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उन्होंने ही मर्डर किया हो, सिक्योरिटी गार्ड का भी और आपके इनका भी, जी का भी। तो ये एलिमेंट है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा अगर हुआ या 5 हुआ तो अनलॉफुल असेंबली के मैटर में चला जाएगा ये। 1 से ज़्यादा, 5 से कम। ऑलराइट, ये रूल होता है आपका सेक्शन 34 के लिए। मैं इसको बहुत स्लोली समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये नुआंस टॉपिक बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊँगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ धीरे धीरे इसको ग्रास्प करिए और खूब इस पे ध्यान दीजिए इलस्ट्रेशंस पे जो मैं बता रहा हूँ। अब आप एक सवाल उठा सकते हैं कि जो ओमिशन है, अब आप देखिए सेक्शन 34 तो एक्ट की बात कर रहा है ना। सेक्शन 34 में लिखा है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, और फिर लेटर पार्ट में भी लिखा है सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट। तो अब एक सवाल बहुत वैलिड सा उठ सकता है कि जब लेजिस्लेचर एक्ट की बात कर रहा है, तो जब BCD ने कुछ किया ही नहीं तो वो तो ओमिशन कहलाएगा, वो तो एक्ट नहीं कहलाएगी, है ना। एक्ट तो क्या होता है, कोई एक एक्टिव इन्फ्लुएंस होती है जब आप पर्पसफुली कुछ करते हैं। आप जब कंप्यूटर चला रहे हैं तो वो आपकी एक्ट होती है, यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट। बट व्हेन यू आर नॉट रनिंग अ कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड एन ओमिशन, दैट इज नॉट एन एक्ट, वो एक्ट नहीं है। तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं कि आदमी के ओमिशन को भी आप ऐसे ही ट्रीट करें कि जैसे कि वो एक्ट थी? ये बहुत ही वैलिड सा सवाल है जो आपके दिमाग में अराइज हो सकता है। फॉर दैट you need to refer to section 32. See, from section 32 to 38, when you read all of them, section 34 becomes a lot clear. मैं इन सब की रीडिंग करूँगा बट धीरे धीरे। section 32 says words referring to act include illegal omissions.
In every part of this code, except where the contrary intention appears from the context, words which refer to acts also extend. Words which refers to act done extend also to illegal omissions. तो इस वजह से this type of construction is possible कि हालांकि BCD ने कुछ नहीं किया हमारे illustration में, yet they are liable because their omission was illegal and the ultimate act that was done was in furtherance of common intention of all, so all of them would be liable for that. अब ऐसे ही केस में ऐसी एक और सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए, ABCD मान लीजिए एक प्लान बनाते हैं कि हमें जी के घर में चोरी करनी है, ठीक है, कोई वेपन नहीं ले जाता, वो सिर्फ रस्सी ले जाते हैं कि भाई छत पे किसी तरीके से चढ़ के पहुंच जाए। लेकिन BCD को ये बात नहीं पता है कि A की जी से दुश्मनी है और वो जी को मारना चाहता है, so he wants to kill Z. BCD are blissfully unaware about it. ये लोग A के साथ वो प्लान बनाते हैं कि जी के घर में चोरी करते हैं, जी के पास बहुत पैसा है, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं चोरी करते हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो A क्या करता है, वापस जाता है ऊपर और जी को गोली मार देता है। एंड में ये लोग सारे पकड़े जाते हैं, इन पे रॉबरी के चार्जेस लगते हैं और आपका सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 का चार्ज लगता है। तो यहाँ पे क्या ये कहा जा सकता है कि एवरीबडी एक्टेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल एंड हेंस ईच ऑफ देम विल बी लायबल फॉर दैट एक्ट विच हैज़ बीन कमिटेड? द आंसर इज नो। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन सबका क्या था? थेफ्ट कमिट करना। यहाँ पे जब ए ने अपनी एक ओवर्ट एक्ट की, वो एकदम ही अलग है, वो उसमें कहीं कॉमन इंटेंशन नहीं फॉल कर रहा। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन था थेफ्ट कमिट करना, तो ये लोग थेफ्ट के लिए तो लायबल हो सकते हैं, और पर कंस्ट्रक्शन अगर ये फैक्ट्स पे आ गया कि इनके पास डेंजरस वेपन्स थे जिसकी वजह से इन्होंने फेयर दिखाए, तो ये रॉबरी के लिए भी लायबल हो सकते हैं। बट दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर ऑफ जी बिकॉज उनका कॉमन इंटेंशन सिर्फ चोरी करना था, सिर्फ पैसा चुराना था। उनका कॉमन इंटेंशन जी को मारना नहीं था, ये ए का पर्सनल इंटेंशन था जो उसने मैनिफेस्ट किया। ऑलराइट, तो हमारे इलस्ट्रेशन के लिए जो ए है उसको तो 302 में सज़ा होगी, पर BCD को 302 में सज़ा नहीं होगी जी के मर्डर के लिए। उनको थेफ्ट के लिए, थेफ्ट इन अ हाउस अंडर पनिशेबल अंडर सेक्शन 380 IPC, उसके लिए पनिश किया जाएगा। और अगर रॉबरी प्रूव्ड हो गई तो रॉबरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जा सकता है। बट इन द गिवन इलस्ट्रेशन उनको इस बात के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि दे हैड अ कॉमन इंटेंशन टू मर्डर जी। सिर्फ ए को उसकी इंडिविजुअल ओवर्ट एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे पहले इलस्ट्रेशन और दूसरे इलस्ट्रेशन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि पहले इलस्ट्रेशन में जो प्री अरेंज्ड प्लान था और जिसके परसुएंट में पार्टिसिपेशन हुआ था, वो उसका मेन कॉमन इंटेंशन था टू मर्डर जी पहले इलस्ट्रेशन में। सेकेंड इलस्ट्रेशन में जो हमारा मेन एसेंस है, जो क्रक्स था प्री अरेंज प्लान का, जिसके बेसिस पे कॉमन इंटेंशन बना, वो था जी के घर पे चोरी करना, ना कि जी को मारना। वो ए ने अगर अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते मार दिया जी को, तो फॉर दैट इंडिविजुअल एक्ट ओनली ए अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द रेस्ट ऑफ देम। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that a person is in a capacity to find out whether it is a case of common intention or not, and especially the judges, क्योंकि अगर judges ने misapplication of law किया then you could always have innocent persons being convicted of an offense without them actually being liable in law. Alright, so judges को ये बहुत जानना ज़रूरी है, and aspiring judges also and practicing lawyers also, क्योंकि as a practicing lawyer
आप किसी का क्विटल करा सकते हैं, आप किसी को छुड़वा सकते हैं उन ऑफेंसेस से अगर आपने देख लिया कि नहीं यहाँ पे तो केस बन ही नहीं रहा प्रोसिक्यूशन का, यहाँ पे सेक्शन 34 नहीं लग सकता, और अगर लगाया है प्रोसिक्यूशन ने तो आप इजीली उसको डिफीट कर लोगे. नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू गिव यू एन इलस्ट्रेशन ऑन इज सिमिलर इंटेंशन. अभी मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, अभी प्रिंसिपल्स पे भी बहुत इलैबोरेट करूँगा. इसमें 1-2 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म होने में, कॉमन इंटेंशन को. द फर्स्ट इज, अब सिमिलर इंटेंशन का एक इलस्ट्रेशन समझिए. मान लीजिए ए है, वो बी और सी को प्रोवोकेशन देता है इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ए बी और सी को प्रोवोकेशन देता है फ़ोन पे, खूब गालियाँ बकता है, ये अब्यूजेस देम ऑन फोन और कहता है कि जो करना है कर लो, मैं आज रात अपने घर पे रहूँगा, जो हो सके कर लेना. अब बोथ बी एंड सी अराइव एट हिज हाउस इंडिपेंडेंटली. वो आते हैं और एक आदमी चाकू लेके आता है, दूसरा रिवॉल्वर लेके आता है. बी चाकू मारता है, सी गोली मार देता है. अब क्या इन लोगों ने कॉमन इंटेंशन के पर्सुएंट में एक्ट किया? ये सवाल है इंपॉर्टेंट. द आंसर इज नॉट. दे हैव नॉट एक्टेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. हाउएवर दे हैड सिमिलर इंटेंशन. दोनों का इंटेंशन था इसको मारने का, पर चूंकि यहाँ पे एक प्री अरेंज्ड प्लान नहीं था दोनों के बीच में, दोनों अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे थे विदाउट नोइंग अबाउट ईच अदर. अब ये हो गया कि सीन ऑफ द ऑफेंस पे दोनों अराइव कर दिए, एक ने चाकू मारा, दूसरे ने गोली मारी, दोनों अपने रास्ते चले गए. बट दे कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34. उनको अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए लायबल किया जाएगा. उन पे 302 का चार्ज अलग अलग लग सकता है, प्रोवाइडेड रिपोर्ट में ये पता चल जाए कि डेथ किन इंजरीज की वजह से हुई है. सो ये बात ध्यान रखिएगा, सिमिलर इंटेंशन का केस है कि दो लोग हैं, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, एक ही वक्त पे अपीयर करके क्या कहते हैं एक ही आदमी को मारा और उसके चक्कर में आदमी मर गया. मान लीजिए, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल मर्डर कर ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे समझना आसान होता है. तो ऐसे केस में भी ये कॉमन इंटेंशन का केस नहीं है. दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दिस इज़ अ केस ऑफ सिमिलर इंटेंशन. ऑलराइट, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिवाइडिंग लाइन बहुत थिन सी है, बट इट इज़ देयर. और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया देन इट कैन लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. ऑलराइट, इसके लिए जो क्लैरिटी हमें जो सेक्शन देता है वो देता है सेक्शन 38. वो कहता है कि persons concerned in a criminal act may be guilty of different offences when several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act. जब बहुत सारे लोग एक ही criminal act commit कर रहे हैं तो they may be guilty of different offences by means of that act. ये जो तभी मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्शन 34 से 38 कॉग्नेट ऑफेंसेस के ग्रुप में, देख एक कॉग्नेट ग्रुप है ये, दिस इज़ वन कॉग्नेट ग्रुप. ये आपको एक साथ पढ़ना होगा और पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू ऑल्सो रीड सेक्शन 32 एंड 33. तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन आपको ये मैं बस एक प्रिलिमिनरी पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होगा. तो अब 38 क्या कहता है आपको कि अगर मान लीजिए एक ही ऑफेंस कई लोग करते हैं तो ये हो सकता है कि वो डिफरेंट ऑफेंसेस करें और डिफरेंट ऑफेंसेस में उनकी सज़ा अलग अलग हो. That is what section 38 is saying I'm clarifying in a simple words. Section 38 actually uses the expression where several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. अब इसका illustration है, A attacks Z under circumstances of grave provocation, that is killing of Z would amount to culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards and intending to kill him and not having been subject to provocation assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is only guilty of culpable homicide. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस में भी जा सकता है. यही है सिमिलर इंटेंशन. दोनों का इंटेंशन मारने का है,
both have the intention to commit homicide, but on the facts it may appear कि इनका common intention नहीं था, इनका similar intention था, so hence they'll be treated in accordance to the acts that they have committed. उनको आप सेक्शन 34 नहीं यूज़ कर सकते उनके खिलाफ to convict them jointly. ठीक है, तो जैसे ये जो एलिस्ट्रेशन है, एलिस्ट्रेशन यही क्लैरिफाई कर रहा है कि एक को तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सज़ा होगी 304 ऑफ द आईपीसी में, बट एक को उसमें मर्डर की सज़ा होगी, बी को मर्डर की सज़ा होगी क्योंकि उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं था, पर ये जो आपका ए है उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सज़ा होगी. ऑलराइट, तो यही डिफरेंस बहुत ध्यान में रखिएगा कि सिमिलर इंटेंशन क्या होता है और कॉमन इंटेंशन क्या होता है. तो ये तो खैर प्रिलिमिनरी पार्ट्स हुए हैं. अभी मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट क्यों है, वाई इज सेक्शन 34 देयर? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 34 इज दैट देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट मोर द पीपल द लेस द गिल्ट हैज़ इन लॉ. इट हैज़ नो एप्लीकेशन इन एक्ट और कमीशन ऑफ अ क्राइम. ये जो एक जनरल बिलीफ लोगों का होता है कि जितने ज़्यादा लोग हो जाएं, आप बाहर भी निकलेंगे तो आपको ये सुनने को अक्सर मिल जाएगा, लोग ये मानते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो ऐसे में आदमी कन्विक्ट नहीं हो सकता, तो लॉ ऐसे केस में अप्लाई नहीं करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक साथ ऑफेंस कमिट करेंगे तो सबके सब बच जाएंगे. तो ये एक तो उस ऐसी थिंकिंग और ऐसी मैंटेलिटी को हटाने के लिए है. दूसरा ऑब्जेक्ट इसका ये, ग्रेविटी ऑफ अ क्राइम कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बिकॉज इट इज़ कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स, नॉर कैन द क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डूअर्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द सेपरेट पार्टिसिपेशन ऑफ ईच. तो अगर क्राइम ग्रेव है और सबके कॉमन इंटेंशन में वो हुआ है, सो नॉट विथ स्टैंडिंग कि उनका जो पार्टिसिपेशन था और उनकी ओवर्ट एक्ट थी या कम थी या नहीं थी, और उनमें से एक की ओवर्ट एक्ट ही सबसे ज़्यादा थी, बट ऑल ऑफ देम वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. ठीक है, इफ लॉ अलाउज सच अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी, कि मान लीजिए अगर लॉ बहुत लार्ज ग्रुप में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी करने लगा कि नहीं इनकी ये लाइबिलिटी और इंडिविजुअल लाइबिलिटी इसमें इनकी होनी चाहिए, दूसरे में इनकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होनी चाहिए, इवन इन द केसेस ऑफ कॉमन इंटेंशन, देन इट वुड इनकरेज ग्रुप क्रिमिनल्स. ऐसे में ग्रुप क्रिमिनल्स को इनकरेजमेंट मिलेगा. ऑलराइट, सेक्शन 34 इज फ्रेम टू मीट द केसेस इन विच इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ पार्टी or to prove exactly what part was played by each of them. The reason why all are deemed guilty in such cases is that the presence of accomplices gives encouragement, support and protection to the person actually committing the act. Hence, all of them will be held liable if they are acting in the furtherance of common intention of all. तो पहला एक essential ingredient क्या है इसका, section 34 का, the most essential ingredient, that is that he should have a common intention in the sense of a pre-arranged plan between the two. And second क्या है, second point क्या है, that the person sought to be made liable had in some way participated in the act. Participation is the key word, remember that. overt act नहीं ज़रूरी है, participation ज़रूरी है. अब participation can be done by merely standing guard and looking at the gate कि देखें कि कोई आ तो नहीं रहा है, पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं, या your mere duty of the offender is to alarm the rest of the person if police patrol arrives. Also keep this in mind that overt act is different from participation. What is overt act? Overt act is actually performing the crime. तो अगर A Z को चाकू मारता है तो वो ओवर्ट एक्ट है, वो एक एक्ट है जो मैनिफेस्ट हुई. ठीक है, इट कैन बी सीन बाय एवरीवन. बट सेक्शन 34 विल अप्लाई टू यू नॉट विथ स्टैंडिंग दैट यू हैव कमिटेड नो ओवर्ट एक्ट्स. इट विल अप्लाई टू यू ओनली बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. सो पार्टिसिपेशन की वर्ड है. ठीक है, उन्हें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है. तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन में बताया कि बी सी डी ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था पर ए ने ही जी का मर्डर किया था, तो ए की जो एक्ट थी वो कही जाएगी ओवर्ट एक्ट, दैट इज एन ओवर्ट एक्ट, इट हैज़ मैनिफेस्टेड. लेकिन बी सी और डी ने तो कोई एक्ट नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था.
So that is why they would be held liable as if they themselves have committed that overt act. और ऑब्जेक्ट मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, जिससे ग्रुप क्रिमिनल्स को इंकरेजमेंट ना मिले. ध्यान रखिएगा, सेक्शन 34 इज अ रूल ऑफ एविडेंस. इट डज नॉट क्रिएट अ सब्सटैंशिव ऑफेंस. ऑलराइट, ये रूल ऑफ एविडेंस है, डज नॉट क्रिएट अ सब्सटैंशिव ऑफेंस. सो गोइंग फर्दर, unless common intention and participation both are present, section 34 will not apply. जब तक ये दोनों नहीं है, section 34 will not apply. The common intention is the mens rea necessary to constitute the very offense that has been committed. It is a bare desire to commit a criminal act without any contemplation of the consequence. तो ये एक सिंपल सी डिज़ायर है दैट यू वांट टू कमिट एन ऑफेंस विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस. जब ए जी को मारने गया, जब उसने प्री अरेंज प्लान किया था और जब बी सी डी को बताया था, तो जब बी सी डी ने उस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा और ए के साथ चलते बने कि हाँ चलो ठीक है, तुम ए को मार देना, हम देखते रहेंगे कि कोई याद तो नहीं रहा है. तो यहाँ पे ये जो सारे लोग थे, they were participants in the crime even though they have not committed an overt act, and it is only A who has committed an overt act. तो ये जो bare desire to commit a criminal act है ना, without any contemplation of the consequence, इसको punish करता है IPC by the aid of section 34, which is a rule of evidence. So participation in the crime in the furtherance of common intention is a sine qua non, that is an essential condition. Sine qua non is Latin for essential condition. It is a bare desire to commit a criminal act without any contemplation of the consequence. Participation in crime in furtherance of common intention is a sine qua non under section 34. Now we come to a point of common intention is different from same or similar intention. अभी मैं शुरुआत में आपको थोड़ा बता चुका हूँ, अब मैं आपको लीगली बताऊँगा ये सारी चीज़ें. पहले तो मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था. Common intention necessarily implies a pre-arranged plan. It is a keyword, pre-arranged plan, or prior concert or prior meeting of minds. ये essential है common intention के लिए. Thus, there is a sharing of purpose. It's like a thread in a necklace that runs through all the beads. जिस तरीके से एक नेकलेस में जो एक थ्रेड नहीं होती जो सारे पर्ल्स को बांधे रखती है, उसी तरीके से ये जो कॉमन इंटेंशन है, जो प्री अरेंज प्लान है, जो प्रायर कंसर्ट है, ये उसी थ्रेड की तरह होता है जो सबको बांधे रखता है. ऑलराइट, सो दस देयर इज अ शेयरिंग ऑफ पर्पस which is lacking in a case where several persons have the same or similar intention. तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पर्पस सिमिलर इंटेंशन के केस में वैसा नहीं होता जैसे कॉमन इंटेंशन के केस में होता है. Several persons can simultaneously attack a man and each can have the same or similar intention, namely intention to kill, and each can individually inflict a separate fatal blow, and yet none of them would have common intention required by section 34 because there was no prior meeting of mind to form a pre-arranged plan. तो अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने अभी आपको प्रोवोकेशन वाला एग्जाम्पल लिया था. ए ने बी और सी को प्रोवोकेशन दिया फ़ोन पे और बोला कि 9 बजे घर पे मिलूँगा, आ जाना, जो उखाड़ते बनो उखाड़ लो, ऐसा बोला उसने. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू? How will you find if it is a case of common intention or similar intention if B and C were to both independently arrive there and were to inflict fatal blows on A out of the provocation? So how would you judge whether it's a case of similar intention or whether it's a case of common intention? It is a case of similar intention. Even though they are performing the same act, intention दोनों का ही similar है, पर intention दोनों का common नहीं है. कॉमन इंटेंशन दो लोगों को जोड़ता है, while सिमिलर इंटेंशन कीप्स देम सेपरेट. ऑलराइट, जब हम साथ में पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक कॉमन इंटेंशन होता है. जब हम इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, हालांकि हम एक सेम टाइम पे पढ़ाई कर रहे हों, आप भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, मैं भी पढ़ रहा होऊंगा यहाँ पे, हालांकि वी आर परफॉर्मिंग द सेम एक्ट एट द सेम टाइम, और पढ़ने का हमारा इंटेंशन भी एक ही है और हम सब्जेक्ट भी एक ही पढ़ रहे हैं.
पर यहाँ पे हमारा कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, यहाँ पे हमारा सिमिलर इंटेंशन है. सो वी आर परफॉर्मिंग एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर वाइल वी आर परफॉर्मिंग द सेम एक्ट. क्राइम में भी यही है, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंट है. कॉमन इंटेंशन जोड़ता है माइंड्स को, जो 2 या 2 से ज़्यादा और 5 से कम लोग होते हैं, वो माइंड्स को जोड़ेगा. पर सिमिलर इंटेंशन, सारे दिमाग में वही इंटेंशन है, सब लोग इंडिपेंडेंटली वही एक्ट कमिट करते हैं, पर उनके बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, उनके बीच में प्री अरेंज प्लान नहीं है. हेंस दैट इज़ अ केस ऑफ सिमिलर इंटेंशन, और वहाँ पे उनको उनकी इंडिविजुअल एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा. सो अभी मैंने आपको सिमिलर इंटेंशन के लिए कौन सा सेक्शन बताया? सेक्शन 38. Where several persons are engaged in or concerned in commission of a criminal act, they will be guilty of different offences by the means of that act. Continuing further, at bottom it is a question of fact. तो ये question of fact हमेशा होता है in every case, and however similar the circumstances, fact in one case cannot be used as a precedent to determine the conclusion on the facts in another. All that is necessary is either to have a direct proof of prior concert or proof of circumstances which necessarily leads to that inference, or as we prefer to put in the time honored way, the incriminating facts must be incompatible with the innocence of the accused and incapable of explanation by any other reasonable hypothesis. ये लाइन यूज़ की गई है सरकार's एविडेंस 8th एडिशन पेज नंबर 30 से. ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहा है. तो मैं आपको ससेंटली बता देता हूँ व्हाट सेक्शन 34 इज़, या व्हाट दिस पैसेज मीन्स. देखिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. अब लॉ में एविडेंस के मैटर में 3 तरीके की प्लीज अराइज होती हैं: क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में जाता है कि कॉमन इंटेंशन है या सिमिलर इंटेंशन है. क्वेश्चन ऑफ लॉ की कैटेगरी में नहीं जाता है. और दूसरी बात, इसको साबित करने के लिए आपके पास डायरेक्ट प्रूफ भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको भी अप्रोच किया गया हो किसी कॉमन इंटेंशन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, या किसी क्राइम के लिए आपने मना कर दिया हो, पर आपके पास एविडेंस है कि हाँ ऐसा इन लोगों ने प्लान किया था, और एंड में वो 3 या 4 लोग वो ऑफेंस कमिट भी कर देते हैं. तो ऐसे केस में अगर वो ऑफेंस कमिट करते हैं, देन यू हैव द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रायर कंसर्ट. लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत ही कम केसेस में होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे जाएंगे. कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, आप कहाँ पे गए, कितना आप लोग कांटेक्ट में थे, साथ में गए, क्राइम कैसे साथ में आप लोग ने कमिट किया, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है. इसके लिए आपका कंडक्ट रेलिवेंट हो जाता है. इन्फेरेंसेस दैट अराइजेस फ्रॉम दैट फैक्ट मे बिकम रेलिवेंट. ठीक है, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी आप साबित कर सकते हैं कॉमन इंटेंशन, कंडक्ट ऑफ द अक्यूज से भी साबित कर सकते हैं कॉमन इंटेंशन, और डायरेक्ट प्रूफ से भी साबित कर सकते हैं कॉमन इंटेंशन और प्रायर कंसर्ट, दैट इज प्री अरेंज्ड प्लान. Going further, for inference of common intention being drawn for the purpose of section 34, the evidence and the circumstances of the case should be established without any room for doubt that a meeting of minds and a fusion of ideas has taken place amongst different accused, and in prosecution of it, the overt act of the accused person have फ्लोड आउट. तो आप सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक ही हाइपोथेसिस की तरफ इशारा करें कि अक्यूज्ड पर्सन हैज़ एक्टेड इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और वो उनकी इनोसेंस से इनकॉम्पैटिबल होनी चाहिए. ऑलराइट, अब I'll narrate a passage from King Emperor versus Barendra Kumar Ghosh, AIR 1924, Calcutta, पेज नंबर 257. ये बाद में प्राइवी काउंसिल से भी अप्रूव्ड हुआ था. इस जजमेंट में बहुत, उस वक्त में सेक्शन 34 पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस थे, और प्राइमरी जो इंटरप्रिटेशन था वो जस्टिस स्टीफेंस ने दिया था इन द केस ऑफ एम्परर वर्सेस निर्मल कांता रॉय में. इसको डिसअप्रूव किया गया.
इस जजमेंट को डिसअप्रूव किया गया एम्परर वर्सेस निर्मल कांता रॉय। और किंग एम्परर वर्सेस बरेंद्र कुमार घोष में बोला गया, इट अपीयर्स टू मी दैट सेक्शन 34 regards the act done as the united act of the immediate perpetrator and his confederates present at the time, and that the language used is susceptible of that meaning. The language follows a common mode of speech. In R versus Salmon, 3 men had been negligently firing at a mark. One of them, it is not known which one of them, had unfortunately killed a boy in rear of the mark. वो mark के पीछे बैठा हुआ था, उसको चोट लग गई और उसको गोली लग गई. All of them were held guilty of manslaughter. Lord Coleridge, Chief Justice as he then was, said, the death resulted from the action of the 3 and they are all liable. Justice Stephen said, firing a rifle under such circumstances is highly a dangerous act, and all are responsible, for they unite to fire at the spot in the question, and they all omit to take any precautions whatever to prevent danger. Continuing further, Privy Council in Mehboob Shah versus Emperor said, referring to section 34 prior to its amendment in 1870, 1870 के अमेंडमेंट के बाद एक्ट वो फर्दरेंस शब्द जोड़ दिया गया था कि एक्ट शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. वो जस्टिस बार्न्स पिकॉक की वजह से अमेंडमेंट आया था. तो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में बोला, सेक्शन 34 lays down a principle of joint liability in doing a criminal act. The section does not say common intention of all, nor does it say an intention common to all. Under section, the essence of that liability is to be found in existence of common intention animating the accused, leading to doing the criminal act in furtherance of such intention. तभी मैंने आपको बोला था फर्दरेंस शब्द पे बहुत एम्फोसाइज करिए. एक्ट ये नहीं कहती है कि कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल और इंटेंशन कॉमन टू ऑल, वो कहती है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. कि मेन इंटेंशन क्या था, जैसे अभी मैंने आपको थेफ्ट का और मर्डर वाला एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे कॉमन इंटेंशन था मर्डर करना फर्स्ट इलस्ट्रेशन में. सेकेंड इलस्ट्रेशन में जहाँ पे ABCD के घर पे चोरी करने गए थे, वहाँ पे कॉमन इंटेंशन था थेफ्ट का, पर ए ने ओवर्ट एक्ट कर दी. तो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जो एक्ट हो रही है उसके एड में सेक्शन 34 तो बुलाया जा सकता है टू प्रूव दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 34 नहीं यूज किया जा सकता. कंटिन्यूइंग फर्दर इन दिस जजमेंट, Privy Council further lays down, to provide the aid of section 34 successfully, it must be shown that the criminal act complained against was done by one of the accused persons in furtherance of common intention of all. If this is shown, then liability for the crime may be imposed on any one of the persons in the same manner as if the act were done by him alone. This being the principle, it is clear to their lordships that common intention within the meaning of section implies a pre-arranged plan, and to convict the accused of an offence applying the section, it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to a pre-arranged plan. As has been often observed, it is difficult, if not impossible, to procure a direct evidence to prove the intention of the individual. In most cases, it has to be inferred from his act, his conduct, or other relevant circumstances of the case. तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कंडक्ट, इन सबसे भी प्रूव कर सकते हैं. कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में प्री अरेंज प्लान होना ज़रूरी है. ऑलराइट, अगर मान लीजिए फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन से फर्दरेंस हटा दीजिए, सिर्फ फर्दरेंस हटा दीजिए, तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल लोग जो इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम क्राइम कमिट करें तो वो लायबल हो सकते हैं, अगर वो एट द सेम टाइम सेम क्राइम कमिट करें. बट चूंकि वर्ड्स यूज क्या किए गए हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और फिर लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन 34 यूज करता है एक्सप्रेशन दैट एक्ट, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल एंड दैट एक्ट. इसका मतलब जो अल्टीमेट क्राइम होना चाहिए वो सबके कॉमन इंटेंशन का पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा.
और वो उसके फर्दरेंस में भी होना चाहिए। तभी फर्दरेंस से क्या आया, तभी जब सिक्योरिटी गार्ड हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जब मारा गया था तो वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में मारा गया था। जो मैंने पहला इलस्ट्रेशन दिया था कि ए बी सी डी जी को मारने जाते हैं और पहले ही बता देते हैं कि हाँ ये प्लान है कि जी को मारना है, तो रात को उसके घर पे घुसते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को पाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी है, सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर ऊपर जाते हैं छत पे, वहाँ पे ए जाके उसको मार देता है जी को, और सिक्योरिटी गार्ड पे भी गोली ए ही नहीं चलाई होती है जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हुई होती है। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ आ गया होगा कि बी सी डी तो अपने पार्टिसिपेशन की वजह से पनिश हो रहे हैं बाय द एड ऑफ सेक्शन 34, लेकिन डेथ ऑफ सिक्योरिटी गार्ड क्यों कॉमन इंटेंशन का पार्ट बन गई, जबकि सिर्फ यही प्री अरेंज प्लान था कि हम सिर्फ जी को मारेंगे। वो इसलिए उसका पार्ट बन गए क्योंकि वो जो वर्ड फर्दरेंस जुड़ा हुआ है ना, वो एसेंस का है। तो सिक्योरिटी गार्ड की डेथ वाज इन फर्दरेंस ऑफ दैट। इन जिस गोल को अचीव करना था जी की डेथ, उसके बीच में सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था ना, तो इन ऑर्डर ऑफ फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन सिक्योरिटी गार्ड वाज मर्डर्ड, हेंस फॉर द डेथ ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो ऑल दीज 4 अक्यूज्ड विल ऑल्सो बी लाइबल, ए बी सी डी भी लाइबल होंगे। ठीक है। कमिंग टू द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पांडुरंग टुकिया एंड भिलिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, आप इसे सीधे पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद भी कह सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर एंड महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के रेशियो को अप्रूव किया था इंडिया में, और बोला नाउ इन द केस ऑफ सेक्शन 34 वी थिंक इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द कॉमन इंटेंशन प्रीसपोजेस प्रायर कंसर्ट एंड इट रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान, बिकॉज before a man can be vicariously be convicted for a criminal act of another, the act must have been done in furtherance of common intention of them all. महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, ये महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर से पैरा लिया था उन्होंने। अकॉर्डिंगली देयर मस्ट हैव बीन अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, several persons can simultaneously attack a man and each can have the same intention, namely the intention to kill, and each can individually inflict a separate fatal blow, and yet none of them would have the common intention required by the section because there was no prior meeting of minds to form a pre-arranged plan. जैसा कि अभी आपको एक इलस्ट्रेशन आपने देखा है APC का ही कि प्रोवोकेशन ए को मिलता है और ए तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में जी को मारने निकल आता है, मान लीजिए सेक्शन 38 का जो इलस्ट्रेशन था, ए जी को मारने अगर निकल आता है ड्यू टू प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पर बी जिसको कोई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं मिला है वो ज़बरदस्ती आके मर्डर कमिट करने लगते हैं इन ऑर्डर टू असिस्ट ए, तो हालांकि ए को तो कल्पेबल होमिसाइड का बेनिफिट मिलेगा, इनको नहीं। तो यहाँ पे ईच विल बी लाइबल फॉर देयर इंडिपेंडेंट एक्ट। बी को मर्डर का पनिशमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि बी अपनी सेपरेट इल विल पे एक्ट कर रहा था, वो जो काम कर रहा था उसने जो होमिसाइड कमिट की वो मर्डर के डेफिनेशन में आती है, पर ए ने जो होमिसाइड कमिट की वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आती है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट था उसके पास। ठीक है। तो दोनों ने अपनी इंडिपेंडेंट एक्ट की, दोनों ने क्राइम कमिट किया जी का मर्डर करना, बट दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं, वहाँ सिमिलर इंटेंशन है। ऑलराइट, कंटिन्यूइंग फर्दर, in this case Supreme Court said, in a case like that each would be individually be liable for whatever injury he caused, but none could be vicariously be convicted for any act of any other, and if the prosecution cannot prove that his separate blow was fatal one, he cannot be convicted of murder. Alright, so keep this difference in mind. So I'll reiterate, in a case like that it would be individually, each person would be individually be liable for whatever injury he caused, but none could be vicariously be convicted for the acts of any other, and if the prosecution cannot prove that his separate blow was a fatal one, he cannot be convicted of the murder. However, clearly an intention to kill could be proved in his case. Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor and Mahbub Shah
versus king emperor, as their lordship say in the latter case, the partition which divides the bounds is often thin. Nevertheless, the distinction is real and substantial, and if overlooked, will result in miscarriage of justice. Now, this pre-arranged plan need not be elaborated, nor is a long interval of time required. It could arise and be formed suddenly, as for example, when one man calls on bystander to help him kill a given individual, and they either by their words or their acts indicate their assent to him and join him in the assault, then there is a necessary meeting of minds. There is a pre-arranged plan, however hastily formed and rudely conceived, but pre-arranged plan must be there, and it must be a premeditated concert. It is not enough, as in the latter case, as Privy Council pointed out, to have the same intention independently of each other. The intention to rescue and another if the intention to kill those who oppose. तो आप इसको ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करिए. अब ए ने मान लीजिए बी और सी को प्रोवोकेशन दिया, वही इलस्ट्रेशन, लेकिन बी को जिस लेवल का प्रोवोकेशन हुआ उसने बोला कि मैं तो इसको सिर्फ घूंसे लात से मारूंगा, आई विल जस्ट हर्ट हिम एंड आई माइट ग्रीवियसली हर्ट हिम. बट सी को जो प्रोवोकेशन लगा ए की अब्यूजेस से, ही थॉट कि आई विल किल ए बाय द यूज़ ऑफ माई वेपन्स. तो वो अपनी गन लोड करता है और जाता है. बी भी अपना हाथ पैर एकदम मजबूत किए वहाँ पे पहुँचते हैं और ए को खूब लात घूंसे मारता है. सी जो उसी सीन पे ये सब देख रहा होता है, वो आता है, फिर जब बी ने मारना बंद किया तो वो आता है, गोली लेता है और ए के सर पे मार देता है. यहाँ पे फेटल ब्लो किसका है? यहाँ पे फेटल ब्लो सी का है. हालांकि सी को यहाँ पे मर्डर की सज़ा हो सकती है, लेकिन बी को ग्रीवियस हर्ट की ही सज़ा होगी, उसको मर्डर की सज़ा नहीं होगी. ऑलराइट, तो इसीलिए सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन अलग अलग हो सकता है. अब यही चीज़ हम ये मान लें कि अब इसी इलस्ट्रेशन को और चेंज करता हूँ. ए ने प्रोवोकेशन दिया बी और सी को. बी सोचता है कि मैं आज इसको मार डालूंगा इसका गला दबा के, और उसको खूब लात घूंसे से मारूंगा क्योंकि मुझे इसी से सेटिस्फैक्शन मिलता है. लेकिन सी जो है, सी अगेन वो सोचता है कि मैं इसको गन से मार दूंगा अपनी. जब बी वहाँ पे पहुँचता है तो ए को खूब मारता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है, और जब वो मार रहा होता है तो ए अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाता है. सी जो है उसको गोली मार देता है ए को, ए मर जाता है. यहाँ अगेन आप एट मैक्स टू मैक्स ग्रीवियस हर्ट एंड मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए तो आप बी को लाइबल करवा सकते हो मैक्स टू मैक्स. लेकिन फेटल ब्लो क्योंकि सी का है तो सी विल बी लाइबल फॉर मर्डर ऑफ ए, नॉट बी. यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन था, लेकिन एक का इंटेंशन पूरा नहीं हो पाया और दूसरे का इंटेंशन पूरा हो गया. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को बहुत ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि कॉमन इंटेंशन है या सिमिलर इंटेंशन है. अब ऐसी एक और सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए कि सी ए को मारने पहुंचता है और ए को मारते मारते घर से बाहर निकालता है. बी को भी ए से खुन्नस है और डी को भी ए से खुन्नस है, और वो बोलता है कि आओ आओ इसको मारो, इसको आज मार देते हैं. तो बी भी आते हैं और डी भी आते हैं. सी तो ऑलरेडी मार रहा है, तीनों मिलके मारते हैं. और उसके बाद बी जो है तीनों को कहता है, तीनों को चाकू लेता है और कहता है कि चलो अब इसे मार देते हैं, और तीनों उसको स्टैब वुंड्स देते हैं. अगेन दिस इज़ नॉट अ सिमिलर इंटेंशन, दिस इज़ अ कॉमन इंटेंशन. यहाँ पे प्री अरेंज्ड प्लान इंस्टेंटली बन गया, हालांकि रूटली कंसीव्ड है, but the pre-arranged plan is there. The commonality and meeting of mind has been established. Now for the murder of A, even though fatal wound हो सकता है B का हो, C या D का ना हो, all of them will be liable as if the act were committed by him
and all of them will be liable under section 302 read with section 34. एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ कि अब आप मान लीजिए कि वहाँ पे एक रकस होता है, ए और बी में लड़ाई चल रही है, बी ए को मार रहा है, सी बगल में खड़ा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो स्पॉट पे बस देख रहा है, खड़ा हुआ है, बी एंड में ए को मार देता है, पुलिस आती है, अरेस्ट कर लेती है बी और सी को, वो सोचती है कि सी ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो क्या यहाँ पे सी लायबल है? सी नहीं लायबल है यहाँ पे, सी इज़ नॉट एट ऑल लायबल, सी इज़ अ mere bystander, he is a bystander, he is a bystander, he is not participating in the commission of crime. Merely if you are looking that a particular crime is being committed and you are not stopping it, तो ध्यान रखिए लीगल ड्यूटी नहीं है आपकी क्राइम रोकने की, मॉरल ड्यूटी हो सकता है हो, बट द लॉ नेवर पनिशेज द ब्रीच ऑफ मॉरल ड्यूटीज. तो हालांकि हो सकती है आपकी मॉरल ड्यूटी थी उसको प्रोटेक्ट करना, पर आपने नहीं प्रोटेक्ट किया, आप इसके लिए लायबल नहीं हो सकते. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ कॉमन इंटेंशन. आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आपको किसी भी ऑफेंस की सज़ा नहीं होगी. बट वहीं पे प्रीवियस इलस्ट्रेशन पे अगर मैंने जो अभी दी उस पर चले जाएं तो दे विल बी लायबल फॉर कॉमन इंटेंशन, और उससे पहले के इलस्ट्रेशन में दे विल बी लायबल फॉर सिमिलर इंटेंशन. वहाँ पे इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए पनिश होंगे. तो गोइंग फर्दर कि अब आप ऐसी सिचुएशन, एक और आपको इस बात पे इलस्ट्रेशन देता हूँ कि मान लीजिए ए को बी मारने जाता है, सी जो है ए को रेस्क्यू करने जाता है, और जब वो उसको रेस्क्यू करने जा रहा होता है तो वो देखता है कि बी ने ए को मार दिया. पुलिस आती है, सबको पकड़ लेती है, फिर वो सोचती है कि बी भी पार्टिसिपेंट है क्राइम में. बी पार्टिसिपेंट नहीं है, उसका इंटेंशन एकदम अलग था. ही विल नॉट, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सक्सीड अगेन नहीं कर पाएगा. सो mere presence together is not sufficient to hold that both accused shared the common intention to murder the person. पार्टिसिपेशन के लिए ये ज़रूरी है कि प्री अरेंज प्लान होना चाहिए. ऑलराइट, बोथ पार्टीज इंडिविजुअली अपनी इंडिपेंडेंटली अपियर कर जाती हैं, तो दे कैन नॉट बी सेट टू एक्ट अंडर अ कॉमन इंटेंशन इन फर्दरेंस ऑफ ऑल. neither they can be liable for that act which is the crime constituent. Also, since the pre-arranged plan is not between them, then participation can also not be said to be between them. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा. एक केस आपको बताता हूँ, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रोहन सिंह, 1996 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 2884, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुआ था. A, B, C and D went to the house of the complainant. A and B were armed with phones while C, D had lathis. एक के पास आप ऐसे समझ लीजिए गणासा टाइप का था, और C और D के पास लाठी थी. C and D exhorted A and B to kill two persons C and D exhorted A and B to kill two persons present in the house. A fired a shot at one person, killing him, while B fired a shot at another person, injuring him. It was held that at best the two respondents shared a similar intention to shoot the victims, but that was not sufficient for drawing inference as to show that they shared a common intention. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिए, बहुत आसान है. पहली बात तो C और D लाठी लेके गए थे. उनका लाठी ले जाने का मतलब यही था कि वो एट बेस्ट हो सकता है ग्रीवियस इंजरी करना चाहते हो. ये भी एक मर्डर में चीज़ होती है कि जो वेपन है, वेपन अगर आपने लाठी ले गए और लाठी अगर वाइटल पार्ट पे जैसे सर पे मार दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्डर से बच जाएंगे, वो तो बात अलग है. लेकिन इन ऑर्डर टू कम टू अ कंक्लूजन वेदर देयर इज वॉज प्री अरेंज प्लान, तो अगर ए और बी गन्स के साथ जा रहे हैं, ए और बी गन्स के साथ जा रहे हैं और सी और डी लाठी के साथ जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ए और बी का तो मारने का इंटेंशन है, क्योंकि जब आप गन ले जाते हैं तो यू वांट कि आप उसको यूज़ करेंगे, और वो डेडली वेपन है. अगर गोली लग गई किसी को
देन मोस्ट प्रोबेबली वो वाइटल पार्ट को अगर इंजर कर गई तो मोस्ट प्रोबेबली डेथ विल इंस्यू। और ए एंड बी इस केस में गणासा भी लेके गए थे, गन्स भी लेके गए थे, पर सी और डी सिर्फ लाठी लेके गए थे। और सी और डी जब लाठी लेके गए, उन्होंने जब बोला कि घर में जो 2 लोग हैं इनको मारो, तो ए ने गोली चला दी और बी ने भी एक फायर शॉट किया दूसरे पर्सन को इंजर करने के लिए। तो कोर्ट ने इस केस में बोला था कि जो दोनों रिस्पोंडेंट्स हैं ए और बी, एक का इंटेंशन मारने का था पर दूसरे का इंटेंशन मारने का नहीं था, क्योंकि बी ने जो फायर शॉट किया था वो वाइटल पार्ट्स पे नहीं किया था, उसने पैर पे या नॉन वाइटल बॉडी पार्ट पे किया था। पर ए ने जो शॉट फायर किया था वो वाइटल पार्ट पे किया था। तो जब आप शूट करते हैं किसी को और वाइटल पार्ट्स पे इंजरी आती है तो इससे आपका इंटेंशन जाहिर हो जाता है कि यू हैव द इंटेंशन टू किल। अगर मान लीजिए मेरे पास गन है, तो मैंने मान लीजिए गन होते हुए भी किसी के पैर पे गोली मारी, तो मेरा इंटेंशन क्या निकलेगा इससे कि मेरा इंटेंशन उसको मारने का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मारने का मेरा इंटेंशन होता तो मैं टॉर्सो पे एम करता या सर पे एम करता। यही चीज़ कोर्ट भी इस कंक्लूजन पे आया कि आप वेपन्स को देखिए और वेपन्स के यूसेज को देखिए। अगर एक का इंटेंशन मारने का होता तो वो सीधे सर पे मार देता, तो दूसरा पैर पे क्यों मार रहा है? इसका मतलब सबका इंटेंशन अलग अलग है। सी और डी ने जब वो वहाँ पे सीधे गए थे तो वहाँ पे वो बोले ए और बी को आओ और इनको मारो। अब मारो इन सिचुएशन बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है। आप अगर किसी को मारने की बात करें तो इसके 2 इंटरप्रिटेशन बनते हैं, आइदर यू वांट टू बीट अप अ पर्सन और यू वांट टू किल अ पर्सन। अब डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वो क्या निकालता है आपके स्टेटमेंट का मतलब, वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। इस केस में जब ए ने गोली चलाई और वो वाइटल पार्ट्स पे चलाई तो ए का तो वहाँ पे इंटेंशन दिख गया मारने का, पर बी ने जब गोली चलाई और नॉन वाइटल पार्ट पे लगी और उसका इंटेंशन सिर्फ इंजर करने का था, मारने का नहीं था, तो कोर्ट ने बोला कि उनका इंटेंशन वॉज सिमिलर, देयर वॉज नॉट अ कॉमन इंटेंशन बिटवीन देम। ठीक है, एंड the very fact and circumstances and the usage of the weapons and the weapons used itself leads to an inference that they shared a similar intention but not common intention. all right, तो देखिए इलस्ट्रेशन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ये मैं शुरुआत में इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे आई वांटेड टू बिल्ड यू अप टू इट। फिर जब आप प्रैक्टिकली निकलेंगे और जब कोर्ट्स में जाएंगे देन यू विल रियलाइज़ कि यूसेज ऑफ वेपन्स किस तरीके से यूज़ हुआ है, किन सर्कमस्टेंसेस में पर्सन ने एक्ट किया, वो बड़े रेलेवेंट हो जाते हैं टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन एक्टेड अंडर कॉमन इंटेंशन और वेदर अ पर्सन एक्टेड अंडर सिमिलर इंटेंशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, eo instanti. Pre-arranged plan need not be elaborated, nor is a long interval of time required. It could arise and be formed suddenly. In other words, there is no rule that common intention presupposes prior concert. It can be formed previously or in a course of occurrence and on the spur of the moment. तो ये जो प्रायर कंसर्ट जो बहुत ज़रूरी डिमांड है फॉर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये क्राइम के कमीशन के दौरान भी अराइज हो सकता है, क्राइम के कमीशन के पहले भी अराइज हो सकता है, लेकिन ये कभी भी क्राइम के कमीशन के बाद नहीं अराइज होता। सो द प्लान में डेवलप ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, बट द प्लान मस्ट प्रीसीड द एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस. That is, it must be anterior in point of time to the commission of a crime, showing prior concert. Thus, in Ramskalal Koiri and others versus State, it was decided on 1st of February 1955 Supreme Court, where during a fight, a person calls the bystander to help him kill a person and they join him. There is a necessary meeting of minds or formation of a pre-arranged plan, though hastily formed and rudely conceived. However, in such cases, it could also be argued
that all those who come may come with different designs or intentions. If they immediately engage in transaction, it will be very difficult task to discover whether they had any common intention from their acts alone. तो इस केस में कोर्ट ने प्राइमरली ये बोला था कि स्पॉट पे भी बन सकता है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए. प्रिंसिपल मैंने आपको समझाना है, और आपको एग्जाम में प्रिंसिपल ध्यान में रखना होता है और वही बताना होता है, और प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रखना है. तभी आप फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो आपकी केस फाइल में आपको दिए जाएंगे आप उसको ढंग से समझ सकते हैं. अगर आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता है तो आप आर्ग्यू क्या करेंगे. तो ये जो कोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि जो प्रायर प्लान है, प्री कंसर्ट है, प्री अरेंज प्लान है, वो मोमेंट पे भी बन सकता है और मोमेंट से पहले भी बन सकता है, मोमेंट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम. तो अगर एक आदमी बुलाता है कि आओ मारो इसको, और दोनों आके मारने में मदद करने भी लगते हैं, तो ऐसे केस में ये कहा जा सकता है दोनों के बीच में कॉमन इंटेंशन है. लेकिन अगर दोनों की एक्ट्स बहुत अलग अलग हैं, एक रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मार रहा है, तो यहाँ पे इंटेंशन एकदम अलग अलग है. अगर एक मारने का मतलब सिर्फ इतना सा निकालता है कि सिर्फ घूसे मारने की बात कर रहा है, जान से मारने की बात नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी ये सोचता है कि ये जान से मारने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंटेंशन अलग अलग है, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है. सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, जब दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति सेम इंटेंशन रखते हैं फॉर द सेम एक्ट, बट उनके बीच में कोई प्री कंसर्ट प्लान नहीं होता. ऑलराइट, नेक्स्ट I'll tell you, the pre-arranged plan can come into existence when one person calls another for attacking a third, even though the length of time between calling and commission of the crime was only a few seconds. And when both of them attack the third person, a common intention has come into existence before the attack is made. Similarly, where during a fight a person intervenes to stop the fight and the intervener is attacked by more persons than one, such persons can be said to have the common intention of preventing the intervener from rescuing the victim of their attack, and they are all liable for an injury. इस इलस्ट्रेशन को मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ. अब मान लीजिए एक आदमी पिट रहा है, 4 लोग उसे घेरे हुए हैं, एक आदमी पिट रहा है और उसको इंटेंशन ये है सबका कि इसको पीट के मार दें. What happens during the course of this fight is a bystander sees this and tries to rescue it. तो जो बाकी के जो मूक पार्टिसिपेंट्स थे, जो कोई एक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ इलीगल ओमिशन कर रहे हैं. सो व्हाट दे डू इज ट्राई प्रिवेंट द इंटरवीनर फ्रॉम इंटरफेयरिंग. तो जो मार वो कह रहे हैं कि जो मार रहे हो उसे मारने दो, डू नॉट इंटरफेयर. ऐसे केस में इट कैन बी सेड दैट दे हैव द कॉमन इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम इफ द विक्टिम डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द असॉल्ट. ठीक है, ये कैसे पता चला कि अगर इंटरवीनर इंटरफेयर कर रहा था तो उन बाकी के बाय स्टैंडर्ड्स को क्या दिक्कत हो रही थी रोकने में. अगर उनको दिक्कत हो रही है रोकने में तो और वो रोक रहे हैं उस इंटरवीनर को, इट मीन्स कि उनका इंटेंशन ये है कि जो क्राइम कमिट हो रहा है उसे होने दो. हेंस इट इज़ अ केस ऑफ कॉमन इंटेंशन. और ये कॉमन इंटेंशन कैसे प्रूव हुआ? बाय पार्टिसिपेशन एंड इलीगल ओमिशन. ये टर्मिनोलॉजीज का बहुत ध्यान रखिएगा. ठीक है, participation is requisite, is an essential condition, not an overt act. Similarly, the person should be acting in common intention in furtherance of all, in execution of the principle of common intention for all of them. ठीक है, ये furtherance में होना चाहिए. Furtherance is the key word. All of them should be acting in furtherance of common intention of all. And they should be liable for that act. That act legislature ने क्यों यूज़ किया? That is वो अल्टीमेट क्राइम की बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर. एक्ट के अंदर इलीगल ओमिशन भी आता है, तो अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है तो भी उस बात के लिए लाइबल हुआ. ऑलराइट, प्री अरेंज प्लान लेकिन होना चाहिए. इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं. Now the third point is in furtherance of common intention of all. मैंने बोला था मैं प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ, फिर उसको डिटेल में डील करूँगा. अभी आई थिंक ये रह जाएगा आज के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है. सो प्राइमरली आई जस्ट डील विद दिस शॉर्ट पॉइंट ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन फॉर एग्जीक्यूटिंग कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल.
तभी the words in furtherance has been used to suggest that section 34 is applicable also where the act actually done is not exactly the act jointly intended by the conspirators to be done. Otherwise the words would not be needed at all. समझे? The word in furtherance suggests that section 34 is applicable also where the act done is not exactly the act jointly intended by the conspirators to be done. अब जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जाम्पल था, सिक्योरिटी गार्ड में रास्ते में मार दिया, वो उन लोगों ने नहीं इन्विसेज किया था, वो तो उनके एंड गोल के बीच में एक ऐसी चीज़ आ गई जो उनके फर्दरेंस को फर्दर होने में रोक रही थी, उनके कॉमन इंटेंशन को एग्जीक्यूट होने में रोक रही थी, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया. तो हालांकि उन्होंने ये गोल एनविसेज नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसका इफेक्ट आता है ऐसा, तो दे विल बी लायबल फॉर दैट एक्ट. अगर मान लीजिए इफ़ इन द कोर्स ऑफ कॉमन इंटेंशन एक आदमी सोचता है, एक ग्रुप सोचता है ऑफ 3 or 4 persons, वो सोचता है कि आई विल एक्चुअली कट ऑफ द लेग्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, और वो जाते हैं और उसके लेग्स काट भी देते हैं. ब्लीडिंग की वजह से वो विक्टिम मर जाता है. तो हालांकि उन्होंने इस कॉन्सिक्वेंस को इमेजिन नहीं किया था, इवन देन दे विल बी लायबल फॉर इट. ऑलराइट, लेकिन acts should not be extraneous to the common intention or is done in opposition to it. Acts done in excess of common intention will not make other liable. तो जैसे कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप का गोल है सिर्फ थेफ्ट करना, और उनमें से एक आदमी जाके किसी एक का मर्डर कराता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेफ्ट, और थेफ्ट किसी का भी इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल आदमी जो मर्डर कर रहा है वो अपनी इंडिविजुअल एक्ट के लिए लायबल होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन वहाँ पे थेफ्ट का था, ना कि मर्डर का. सो इफ लेट अस सपोज, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 4 persons एंटर अ हाउस. देयर इज़ अ हस्बैंड, देयर इज़ अ वाइफ एंड देयर इज़ अ चाइल्ड. नाउ बी सी डी एक्चुअली इंडल्ज इन थेफ्ट. ए जो है actually goes inside the room of a particular husband and wife and kills the husband. He rapes the wife and then kills her, and after that he also murders the child. When B C D comes out, they come to know that A have committed such heinous crimes. Here B C D will not be liable for the acts of A. A alone will be liable for acts of A. यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं था इस बात का. कॉमन इंटेंशन वहाँ पे हाउस ब्रेकिंग के लिए सब लोग पनिश किए जाएंगे, थेफ्ट इन अ हाउस के लिए सब लोग पनिश किए जाएंगे, पर ये जो रेप, मर्डर और ये जितनी भी चीज़ें हुए हैं उसके लिए ए अलोन लायबल होगा. ऑलराइट. सिमिलरली एज ऑफ 1965 सुप्रीम कोर्ट अगेन रीइटरेटेड द सेम लॉ. ऑलराइट, आप इनमें से कोई भी लॉ चूज़ कर लें जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगे, in order to substantiate your citations and substantiate your points. In Shankar Lal, Kachra Bhai and others versus State of Gujarat, to invoke the aid of Section 34 successfully, it must be shown that criminal act complained against was done by one of the accused person in furtherance of common intention of all. If this is shown, then liability for the crime may be imposed on any one of the persons in the same manner as if the act were done by him alone. This being the principle, it is clear that to their lordships that common intention within the meaning of this section implies a pre-arranged plan, and to convict the accused of an offence applying the section, it should be proved that a criminal act was done in pursuant to pre-arranged plan. देखिए वही law repeat हो रहा है बार बार, और the point I want to make by reiteration of this law is that it is a settled law, and you should use these terminologies in your answer and during the course of your arguments. As has been observed, it is difficult, if not impossible, to procure direct evidence to prove the intention of an individual. In most cases, it has to be inferred from his acts, conduct, or other relevant circumstances of the case. It is therefore clear that criminal act mentioned in section 34 of the IPC is the result of a concerned action of more than one person. If the said result was reached in the furtherance of common intention, then each person is liable for the result as if he had done it himself. The question is, what is the meaning of the expression in furtherance of common intention?
The dictionary meaning of the word furtherance is advancement or promotion. If 4 persons have a common intention to kill A, they will have to do so many acts in promotion or prosecution of that design in order to fulfill it. Some illustration will clarify the point. 4 person intends to kill A who is expected to be found in a house. All of them participate in different ways. One of them attempts to enter the house but is stopped by the sentry and he shoots the sentry. Though the common intention was to kill A, the shooting of the sentry is in furtherance of the said common intention. So section 34 applies. Take another illustration. If one of the said accused enters the room where the intended victim usually sleeps, but somebody other than the intended victim is sleeping in the room, and a mistaken impression, he shoots him. The shooting of a wrong man is also in the furtherance of common intention, and so section 34 again will apply. Now I'll give you a third illustration. The intended victim has a twin brother who exactly resembles him, and the accused who is interested with the part of shooting the intended victim on a mistaken impression shoots the twin brother. The shooting of the twin brother is also in the furtherance of common intention. Here also section 34 applies. If that much is to be considered, the Supreme Court said, we do not see any justification why the killing of another under a mistaken impression of an identity is not in the furtherance of common intention to kill the intended victim. If the common intention was to kill, and if the common intention was to kill A, and if one of the accused kills B to wreak out his private vengeance, then it cannot be possibly said that a person is acting in the furtherance of common intention for which the others can be constructively made liable. But on the other hand, if he kills B bona fide believing that he is A, then the Supreme Court said we do not see any incongruity in holding that killing of B is in furtherance of common intention. Keep in mind that here even shooting the wrong person, believing in a bona fide manner that he is the person who the accused persons intend to kill, then in these circumstances also the accused persons will be held liable even though they shot the wrong person by mistake. They cannot take this defense that we shot the wrong person and we never knew that he was a twin brother, or we never knew that he was not that particular person. In those situations, this will not be the case of doctrine of transfer of malice. यहाँ पे transfer of malice का सवाल ही नहीं आएगा. यहाँ पे section 34 squarely apply करेगा. That is why I included this case law of Shankar Lal Kachravai and others versus State of Gujarat. It was reported in AIR 1965 Supreme Court page number 1260. तो ये जो 3 illustration जो Supreme Court ने दिए हैं, they are very important and keep this in mind. तो wrong person की भी shooting, believing in a bona fide manner that they are shooting the right person, also comes within the ambit of section 34. Security guard, sentry का तो आप समझ ही चुके हैं. और mistaken identity के भी केस में अगर persons crime commit करते हैं ये सोच के कि इसकी आइडेंटिटी वही है जिसको वो मारना चाहते हैं, पर टर्न्स आउट कि ही इज़ नॉट द सेम पर्सन, इन दोज केस ऑल्सो दे विल बी लाइबल. ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा. हाउएवर जहाँ पे एक आदमी अपना प्राइवेट वेंजेंस निकालने के लिए किसी और को मार देता है और वो पूरा प्लान ही नहीं किसी को मारने का, ऐसे केस में कॉमन इंटेंशन दोनों के बीच में नहीं है. जैसे हमारा थेफ्ट वाला एग्जाम्पल में था जहाँ पे हाउस में थेफ्ट करने घुसे पर ए ने मर्डर कर दिया ड्यू टू अपनी पर्सनल एनिमिटी के कारण या ड्यू टू हिज पेंचेंट फॉर सच ग्रेव क्राइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. So now primarily we are done with I think we are done with the quarter of section 34's nuances. We'll continue this on Monday. आज के लिए लेक्चर बस इतना ही है. My time is over. So I'll meet you next week and where I'll be taking up more nuances that are contained under section 34. All right.